ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੂ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਈ ਹਾਂ ਜਨਾਹ ਹਸਪੀਟਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾਮਲੂਮ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਟਿਸ਼ੂ ਸੰਗਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਤਾਬ ਕਮਰ ਤੇ ਗੁਲਫਾਮ ਹੈਦਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਫਾਮ ਹੈਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੁਲਫਾਮ ਹੈਦਰ ਦਾ ਬਾਪ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਡੋਗਰ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਿਗਾੜ ਲੇਂਗੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद शेख और आप देख रहे हैं मीडिया 92। नाजरीन, शहर लाहौर में एक ऐसा ग्रोह सरगर्म है जो हव्वा की बेटियों को ज़्यादती का निशाना बनाते हैं, और इसी तरह की ज़्यादती का निशाना बनने वाली एक नूर फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, जो ननकाना के इलाका सैयद वाला से यहाँ लाहौर में इलाज व मुआलजे के लिए आई थी। उनको यहाँ से अगवा किया गया और ज़्यादती का निशाना बनाया गया। कैसे हुआ, वो कौन लोग थे और कितने दिन उनको ये सारे अमल में रखा गया, आइए बात करते हैं नूर फातिमा से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइएगा कि आप लाहौर में कब आई, किसके साथ आई और क्या वाक़या पेश आया, कहाँ से आपको वो लेके गए, वो सब बताइएगा। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੂ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਈ ਹਾਂ ਜਨਾਹ ਹਸਪੀਟਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾਮਲੂਮ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਲੂਮ ਇੱਕ ਟਿਸ਼ੂ ਸੰਗਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਤਾਬ ਕਮਰ ਤੇ ਗੁਲਫਾਮ ਹੈਦਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਫਾਮ ਹੈਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 3-4 ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਟ ਪੂਰਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੁਲਫਾਮ ਹੈਦਰ ਦਾ ਬਾਪ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਡੋਗਰ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਿਗਾੜ ਲੇਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਤੀਸਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੂ ਨਾਲ ਆਈ ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਨਾਹ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਗੁਲਫਾਮ ਹੈਦਰ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਡੋਗਰ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਗਾ? ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ, ਅਗਰ ਨਿਕਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਾਇਮ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਫਤਾਬ कमर तो गुलफाम हैदर ने। जी बिल्कुल, आपने सुना कि गुलफाम और वो जो बता रहे हैं उनका नाम कि पहले सबसे पहले वो इनको लेकर जाते हैं और एक नामालूम जगह पर, उसके बाद वो ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। फिर इनके गुलफाम वगैरह के वालिद आते हैं मुश्ताक, वो कहते हैं जी कि मैं पहले भी शादी कर चुका हूँ और अब मैं तुमसे शादी करूँगा। मतलब ये कोई एक अजीब किस्म के लोग पाए जा रहे हैं यहाँ पर कि जो पहले बेटा भी ज़्यादती करता है, उसके बाद बाप भी उसी अमल में शामिल हो जाता है। हमारे साथ इनके वकील हैं साद बुखारी साहब, हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि अब तक इनका केस कहाँ तक पहुँच चुका है और मज़ीद अब इनको क्या डिमांड्स हैं इनकी महकमा जात से, क्या अब तक इनको इंसाफ मिला है या नहीं मिला। हम बात करते हैं साद बुखारी साहब जो कि सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, इनसे पूछते हैं कि अब तक नूर फातिमा के केस में ये कहाँ तक पहुँचे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सिचुएशन शेख साहब बड़ी अनफॉर्चुनेट सी है, जैसे कि आपको बताया है, मतलब शी इज़ नॉट इवन इन अ पोजीशन टू टॉक प्रॉपरली बिकॉज ऑफ द इवेंट जो उनके साथ हुआ है। दिस इज़ वेरी सैड। अब जहाँ तक कार्रवाई की बात है, मैं बीइंग लीगल एडवाइज़र, लीगल काउंसिल, मैं आपको बता दूं कि हुआ यूँ था कि जब ये बाजियाब हुई हैं तो इन्होंने अपने वरसान के थ्रू हमसे रब्ता किया
तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि पीछे एक अगवा का पर्चा ऑलरेडी हो चुका था, क्योंकि यूँ हुआ था कि जब वो मस्जिद से इनके जो वारिस थे चचा जान वो वापस आते हैं तो इनको वहाँ पे नामालूम पाते हैं, तो नहीं होती हैं वहाँ पे, तो वो फ़ौरन एक अगवा का पर्चा दर्ज करा देते हैं। तो अब हुआ ये कि जब ये आई वहाँ पे और पता चला कि जो सिचुएशन है ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड वो कुछ और है और इनके साथ ज़्यादती हो चुकी है, रेप कमिट हो चुका है, तो उसमें यही होता है कि फ़ौरन जाके सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दी जाती है। तो दे अप्रोच द एरिया पुलिस स्टेशन, थाना शेरा कोट है, उन्होंने वहाँ पे सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई और वो जो सारा वकूआ जो इन्होंने अभी आपको बताया है ये सारा इन्होंने 161 की स्टेटमेंट में अपना बयान किया। अब क्योंकि जो कानूनी बात है 161 की स्टेटमेंट है वो पुलिस रिकॉर्ड करती है और उसकी कोई अहमियत एज सच नहीं होती, तो हमने इसको ज़रूरी समझा कि फौरी तौर पे इनकी 164 की स्टेटमेंट्स रूबरू मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड की जाए, क्योंकि जो एविडेंशरी वैल्यू है वो मजिस्ट्रेट की स्टेटमेंट की है। 161 की कोई अहमियत नहीं है, एविडेंशरी वैल्यू नहीं है, काबिलियत खाल शहादत नहीं होती। तो हमने टू हैव अ कॉन्क्रीट एविडेंस विद अस, हमने वहाँ पे 164 की स्टेटमेंट्स इनके रिकॉर्ड करा दी। कोशिश करते रहे कि मुल्ज़मान जो थोड़ी बहुत ये ट्रेस आउट कर सकती थी इन्होंने किया, और लकीली एक मुल्ज़िम जिसका नाम आफ्ताब कमर है, ही इज़ वन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन्स, वो गिरफ्तार भी हो गया। समहाउ वो कहीं से पकड़ा गया और वो अरेस्ट हो गया। इनको इतला मिली कि आपका मुल्ज़िम अरेस्ट हो गया है, उनको कोई एएसपी साहिबा के पास पेश किया गया और देखते ही देखते पता चला कि उसको छोड़ दिया गया है, उसकी अरेस्ट डाले बगैर, अरेस्ट का इंदराज किए बगैर छोड़ दिया गया है। इसी से आप आइडिया करें कि हाउ मच द सिस्टम इज़ वीक और हाउ मच द अदर पार्टी इज़ पावरफुल, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब बाकी मुल्ज़मान हैं, वो जो लड़के थे जिनके नाम इस्तगासा मेरे सामने, आफ्ताब है, गुलफाम है, मुश्ताक उनका वालिद है, फिर एक मोहम्मद जाजिब है, अज़हर हुसैन है, उमर हयात हैं, ये मल्टीपल ऑफेंडर्स हैं सर, और ये प्रीवियसली रिकॉर्ड होल्डर्स हैं सारे। इन पे और भी मुख्तलिफ नौयत के और इस नौयत के पर्चे मौजूद हैं। बावजूद इसके नॉट ओनली पुलिस इनको गिरफ्तार कर पा रही है, जबकि एक पकड़ा था आफ्ताब नामी बंदे को, उसको भी छोड़ दिया गया है। वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन। अब पुलिस का काम है कि वो जाके उनको पकड़े। हम बीइंग लीगल एडवाइजर्स जब इनको पकड़ेंगे विल मेक श्योर कि उनको सज़ा हो कोर्ट में, हम एविडेंस रिकॉर्ड कराएंगे। लेकिन अब मुल्ज़मान को गिरफ्तार करना, रेड डालना, जाके पकड़ना, वो हमारा काम नहीं है, वो पुलिस का काम है, और पुलिस इसमें अभी तक मुकम्मल तौर पे नाकाम पाई गई है। तो बहरहाल हम यही कर सकते हैं कि विल मूव एप्लीकेशन टू द CCPO, विल मूव एप्लीकेशन टू द IG पंजाब, और हम ये कॉन्टीन्यूसली इस्तदा करेंगे और ये थ्रो मीडिया भी यही रिक्वेस्ट करेंगी कि इनके जो मुल्ज़मान हैं उनको पकड़ा जाए, ना सिर्फ इसलिए कि इनको इंसाफ मिले, बल्कि इसलिए कि इस तरह के जो अनासिर हैं, गुंडा एलिमेंट्स हैं, इनको पकड़ के इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, तब ही ये जो जराइम हैं वो कम हो सकते हैं। अदरवाइज अगर ये इस तरह का वकूआ करके आज़ाद फिर रहे हैं, दैट एक्चुअली मीन्स कि किसी भी वक्त इस तरह की एक और अक्रेंस हो जाएगी और हम फिर यहाँ पे बैठ के यही तकरीरें करते रहेंगे, क्योंकि मुल्ज़मान पकड़े तो नहीं जाते, हम बस बैठ के तकरीरें कर लेते हैं। जी बिल्कुल, आपने साद बुखारी साहब की बात को बगौर सुना। ये इनकी बात सुनने के दौरानिए में मुझे एक कसूर का वाक़या ज़ैनब का याद आ गया, जहाँ पर जुल्म की एक दास्तान रकम की गई थी। आज ये नूर फातिमा बाकायदा तौर पर अपने मुल्ज़मान का नाम ले रही हैं, शनाख्त कर रही हैं, बता रही हैं, और उनमें से किसी एक को पकड़ भी लिया गया। लेकिन हमारी कमज़ोरी समझ लें, हमारे इदारों की कमज़ोरी समझ लें, एज अ पाकिस्तानी हम सब एक हैं। हम ये चाहते हैं, आज ये मुतालबा करते हैं कि हमारी बहनों बेटियों की इज़्ज़तों को बचाया जाए। जब एक गिरोह को बाकायदा तौर पर नॉमिनेट किया जा रहा है, IG पंजाब साहब और अदलिया इसमें भरपूर ताउन करे ताकि बाकी पाकिस्तानी बेटियों की इज़्ज़तों को महफूज किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।